what are the different types of surgeries we have? We have things ranging from endoscopic procedures to surgical procedures. Endoscopic procedures, आजकल तो छोटे छोटे पिल्स से भी हम लोग वेट लॉस कर सकते हैं, वो पिल्स खाने के बाद, बट वो दोज प्रोसीजर्स आर मेंट फॉर पीपल हु आर ओवरवेट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, हम इसे डिफाइन करते हैं बॉडी मास इंडेक्स के तौर पे, कि जब भी किसी का बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर होता है तब हम उन्हें ओबीस बोलते हैं। बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? बॉडी मास इंडेक्स का मतलब है एक इंडेक्स जिससे हम लोग नॉर्मली आमतौर पे लोगों को क्लासीफाई करते हैं। ये कैसे मेजर किया जाता है? इट इज़ द वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय द हाइट इन मीटर स्क्वायर. So this gives us an index about the patient's or the person's weight. So अगर BMI या body mass index is over 25, that means the person is overweight. Up to 25 it is normal. 30 to 35 it is class 1 obesity. 35 to 40 it is class 2 obesity, and over 40 it is class 3 obesity. So depending on the person's weight, we have tailored procedures according to that. सो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स यूजुअली उनमें हेल्पफुल होता है जिन्हें थोड़ा सा 5-7 किलो, 8 किलो, 10 किलो तक वेट लॉस करना है। उनमें एंडोस्कोपी से हम लोग एक छोटा सा पिल दे देते हैं या एंडोस्कोपिक बलून प्लेसमेंट कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे या इंटेस्टाइन में एक लेयर लगा देते हैं। इन सब से वेट लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, बट इट इज़ ओनली ए फिक्स्ड वेट लॉस अबाउट 5 to 7 kilos, मैक्सिमम 8 kilos weight loss, 10 kilos, not more than that. If you have more comorbidities and if you want a more sustained weight loss, there are laparoscopic or robotic procedures in vogue. The commonest amongst them is a sleeve gastrectomy. अब sleeve gastrectomy होता क्या है? Inner sleeve, जो stomach होता है, उसे trim करके एक banana shaped structure बना देते हैं। 80% of the structure is removed from your body, और उस banana shaped structure एक restrictive mechanism के तौर पे काम करता है, and it controls the quantum and quality of food that is going inside your body and helps you lose weight. Now, how much weight can you lose by this procedure? It has been seen that a normal individual loses about 60 to 70% of their excess body weight. Now, what is excess body weight? Suppose somebody's height is about 5 feet 2 inches and the weight is about 95 kilograms. Ideally weight होना चाहिए था 55, वेट है 95, तो 40 किलोग्राम ओवर वेट है, वो 40 किलोग्राम इज एक्सेस बॉडी वेट, तो उसका 60 to 65 या 65 to 70% कम होता है यूजिंग स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। नाउ स्लीव में स्टमक को जैसे ट्रिम किया हमने बनाना शेप्ड स्ट्रक्चर में, इट एक्ट्स एज अ रेस्ट्रिक्टिव पाउच। ऑल्सो देयर आर सर्टेन हार्मोन्स रिलेटेड बाय विच वी हैव कंट्रोल ऑन आवर एपेटाइट और सैटिस्फैक्शन, इसे हम ग्रेलिन, न्यूरोपेप्टाइड्स एंड इनक्रेटिन्स बोलते हैं, उसका भी रेगुलेशन स्लीव से होता है। दिस इज द मेजर मैकेनिज्म ऑफ वेट लॉस मोर देन द रेस्ट्रिक्टिव मैकेनिज्म्स। कई लोग बोलते हैं हम तो खाना कम कर देंगे, बट नो, दिस इज नॉट द ओनली मैकेनिज्म बाय व्हिच अ स्लीव वर्क्स, इट इज द हार्मोनल रेगुलेशन व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नाउ how would the resolution happen? क्या expect कर सकते हैं after a sleeve? After a sleeve, you should expect that your body weight gradually melts over time. Over the next 2 years, you would lose about this 40 kilos से 70%, about 30 odd kilos. उसमें 15-20 किलो आप पहले 6 महीने में lose कर जाते हैं। And comorbidities जो है, जैसे diabetes, sugars, and dyslipidemia, hypertension, stress incontinence, reflux, all this disease gradually melt away over time. And weight loss is sustained, head to toe, uniform weight loss होता है from head to toe, more like candle wax. The other procedure in vogue, which is very common, is the Roux-en-Y gastric bypass. ये बहुत strong procedure है. In fact, सबसे strongest procedure इसे ही माना जाता है for weight loss. अब बट ऐसा नहीं है कि इसी को सबको करना ज़रूरी है. It depends on your BMI, your comorbidities, कि किसको कौन सा procedure सूट करता है. Now, ये प्रोसीजर उन्हीं लोगों में किया जाता है जिनका डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है और वेट भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आपका अगर वेट 100 से 120, 125, 130 या 150 से ऊपर है विथ एन एवरेज हाइट, देन दिस प्रोसीजर इज मोर फॉर यू, बिकॉज इसमें मेल अब्जॉर्प्शन भी एडेड बेनिफिट आपको प्रदान किया जाता है। स्टमक को छोटा बना दिया जाता है, पाउच को, इंटेस्टाइन्स को भी डिवाइड कर दिया जाता है, एंड बाकी पार्ट ऑफ द स्टमक जो रेसिडुअल स्टमक है एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, उसको बाईपास कर दिया जाता है। जो डिस्टल पार्ट या एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको लाके
इन छोटा जो रिजर्वायर हमने बनाया उस पर जोड़ दिया जाता है। तो आपका खाने का एक तो पाउच छोटा हुआ है, दूसरा हार्मोनल रेगुलेशन जैसा स्लीप में बनाया, तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बिलियोपैंक्रेटिक जूसेस जो हमारे डाइजेशन के लिए चाहिए वो नीचे जाके मिश्रण हो रहे ताकि हमारा अमाउंट ऑफ फूड विच इज अब्सॉर्ब्ड इज रेगुलेटेड। हम उसे रेगुलेट करते हैं कि कितना न्यूट्रिशन एक इंसान को चाहिए आपके BMI के हिसाब से। दिस प्रोसीजर पहले 80s या 70s के दशक में इसे ओपन प्रोसीजर पेट फाड़ के किया जाता था। आजकल हम इसे लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक तौर पे करते हैं एंड वी कैन एक्सपेक्ट with this procedure that the patient loses about 80 to 85% of their excess body weight. It is a very, very strong procedure with almost near regulations of your increased comorbidities. By near regulation, I mean कि अगर किसी का शुगर बहुत ज़्यादा है, somebody who is strongly diabetic would have resolution of the diabetes completely. If not completely, they would have decreased requirement of insulin, decreased requirement for your oral pills. Somebody who is hypertensive और जिनका BP बढ़ा हुआ है, उनका ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस कम हो जाते हैं, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कम हो जाता है, जिनको रिफ्लक्स होता है, रिफ्लक्स या एसिडिटी होना, वो तो मेजॉरिटी पेशेंट्स को ख़त्म हो जाता है। डीप वेन्स में क्लॉट्स होना, क्लॉट्स के कारण डेथ्स होना या सडन डेथ्स, एवरीथिंग इज मिनिमाइज्ड एंड ऑलमोस्ट ऑब्लिटरेटेड। इट इज ए लाइफ चेंजिंग डिसीजन। जो सुस्ती से लेटे रहते थे ओबीस पेशेंट्स को आप देखेंगे उनमें एनर्जी नहीं होता, इसीलिए वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे, डाइट भी नहीं, बिकॉज उनको एक दिन कोशिश करेंगे डाइट करना, फिर उनको सुस्ती बहुत आती है, नींद आती है, बिकॉज एनर्जी है ही नहीं, बिकॉज ऑफ द सर्कुलेटिंग इंसुलिन। वो इंसुलिन को हम लोग रेगुलेट करते हैं विद दिस सो दैट द पेशेंट कैन गेट मोर एनर्जेटिक। यूजुअली सारे बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद पेशेंट्स बोलते हैं विद इन अ मंथ कि वी फील मोर एनर्जेटिक, हमारा बॉडी एनर्जी सर्ज होता है। सो इट इज अ लाइफ चेंजिंग थिंग एंड डेफिनेटली फॉर समबडी who is obese, it is a miracle, it is nothing less than a boon. The third procedure जो हम describe करेंगे, it is called a mini gastric bypass. Now in mini gastric bypass, stomach को भी छोटा किया जाता है, intestines को एक loop बना के जो हमने stomach को छोटा किया हुआ एक pouch बनाए, उस pouch के साथ attach किया जाता है. So it is midway between a sleeve and a routine RYGP और a routine Roux-en-Y gastric bypass. इसमें करीब 65 to 75% excess body weight का निवारण होता है again in the next 2 years. These three are the common procedures. Other procedures which are there, which are actually helpful in diabetics are biliopancreatic diversion with diurnal switch और jejunal bypass. ये primarily हम लोग high end diabetics के लिए करते हैं, जो हम अब डिस्कस नहीं कर रहे। हो सकता है इन द सब्सिक्वेंट एपिसोड्स इफ वी गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम यू टू डिस्कस सच प्रोसीजर्स वी वुड डेफिनेटली डिस्कस, बिकॉज ये नॉर्मल BMI में भी करते हैं। सपोज कोई डायबिटिक है, उनमें अगर कोई मेटाबॉलिक लोड बढ़ा हुआ है, उनमें भी वी वुड डू दिस प्रोसीजर्स। दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन इस एपिसोड में, एंड आई होप यू हैव लाइक्ड एंड एंजॉयड दिस एपिसोड। इफ यू हैव एंजॉयड, डू नॉट फॉरगेट to subscribe us ताकि आपको notification जल्दी मिले, and like us and share, and we'll come back with more interesting episodes. Thanks for watching.